hydrocarbon, there are four main family of hydrocarbon. First one alkane, second alkene, third alkyne, and fourth benzene. Okay, today we discuss about alkane. Alkane, those hydrocarbon in which single bond present between carbon is called alkane, and alkanes are made up by carbon and hydrogen, and all valency of carbon satisfied by the carbon and hydrogen. Here there are two carbon which are joined with single bond between carbon. You can see here single bond present between carbon, and another three valency are complete by three hydrogen of each carbon. Okay, and another name of alkane is paraffins. Paraffins, why name of paraffins? Because alkanes are non-polar and very less reactive. Generally not react with acid, base and salt. It means acid, base and salt, इन तीनों के साथ में ही ये रिएक्शन नहीं करता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. बट एट हाई टेम्परेचर it may be possibility react with concentrate HNO3 and may be possibility strong oxidizing agent like KMnO4, potassium permanganate and potassium dichromate react. Okay, hybridization, each carbon joined with another for single bond in alkane, so that hybridization of carbon is sp3. And we already discussed in chemical bonding chapter there are four sigmas of that hybridization sp3. Okay, structure of alkane. Generally each carbon is tetravalent because there are four valency complete by hydrogen and another carbon atoms. So here for sigma and hybridization sp3, bond angle 109 degree 28 minute, and this is tetrahedral geometry. Okay, tetrahedral geometry. According to Kekulé, this is square planar. This is square planar. But in dichloromethane CH2Cl2, there are two conditions. Condition first may be possibility carbon joined with single bond, but in CH2Cl2 1, 2, 3, 4 valencies are complete by the single bond. Okay, now here bond angle between between chlorine and chlorine is 180 degree in this case, but here valency of carbon satisfied by the two chlorine atom and two hydrogen atom, and here bond angle is 90 degree between chlorine. So Kekulé unable to explain the structure, but tetrahedral geometry explained by the Liebel and Van Hoff, so that the first Nobel Prize of Organic Chemistry to be given Liebel, Van Hoff, इन्हीं को सबसे पहले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का नोबेल प्राइज मिला था. नीट पे आने लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से सुनना. सबसे पहले एल्केन की डेफिनेशन, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन में, फर्स्ट थिंग. सेकंड, पैराफिन्स कहते हैं बिकॉज एसिड बेस सॉल्ट से रिएक्शन नहीं करता है, लेस रिएक्टिव होता है, नॉन पोलर होता है. नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात की तो ईच कार्बन इन
एल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, नेक्स्ट है केकुले। केकुले ने दो तरह की स्ट्रक्चर बनाई। इसमें तो देखिएगा हमारे पास 180 डिग्री एंगल बन रहा है क्लोरीन क्लोरीन में, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि इनमें से ना तो ये होता है और ना ही ये होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लीबेल वांडोफ आया और बोला कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सभी एंगल बिल्कुल बराबर होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। और अगर बात करें नीट के लिए क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे, तो हमेशा आंसर जाएगा 6n। 6n का मीनिंग हो गया कि द नंबर ऑफ कार्बन इज n मल्टीप्लाई बाय 6। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल कितने होंगे, तो कार्बन की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ 6 इंटू 1 टोटल 6 एंगल होंगे। कैसे देखिएगा, 1 2 3 4, 4 तो इनमें हो गए, एक इनके साथ 5, और एक जो है इसमें बचा हुआ इसके और इसके साथ, और एक बना हुआ है इसके और इसके साथ। इस तरह से टोटल हमारे पास में 6 एंगल बनते हैं। जैसे क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए, इथेन C2H6, इसमें हमारे पास में क्या कितने बॉन्ड एंगल होंगे, तो हमारे पास 6n यूज करेंगे, 6 इंटू 2 टोटल कितने होंगे 12 है। तो टोटल बॉन्ड एंगल इसमें 12 होंगे। ये नीट के अंदर आने लायक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है, लीबेल वांडोफ को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का फर्स्ट। ओके, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 आप जानते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको ऑलरेडी पता है, हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2.5 होता है एल्केन में। ओके, मैं तीनों का ही डिस्कशन कर लेता हूँ एक बार, जो तीनों एक साथ में देख लीजिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ इसकी 2.5 होती है। और अगर बात करें एल्कीन में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर हम 2.75 लेकर के करते हैं, और ये फिक्स है, ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन आपको लर्न भी करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसकी 2.5 है, यहाँ 2.75, और अगर एल्काइन है तो ये 3.25 होती है। ये देखिएगा 3.25। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2018 में नीट में भी आया क्वेश्चन कि कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन? It means that hydrogen which attach with 3 or maybe possibility 3 to 4 value of electronegativity, मतलब 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है वो हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए 3.25, यहाँ अगर ये हाइड्रोजन ऐड कर दे तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से कनेक्ट है ये। ओके, जैसे हम कहें HOH, इसमें ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों ये एक्टिव हाइड्रोजन है? व्हाई? बिकॉज दिस हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड आल्सो सेम हियर। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ, कार्बन। कार्बन में बॉन्ड लेंथ आपको ऑलरेडी याद रखना होगा, क्या 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें 110 पिकोमीटर, ये फिक्स है, आपको याद रखना है इसको। 154 और 110 pm। फ्री रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम देंगे तब भी ये बहुत बार यूज होता है। इसमें जो रेडिकल बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे? फ्री रेडिकल बनते हैं, तो देखिएगा हमारे पास में एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा CnH2n+1। गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये एल्केन है, L+N, और ये वाला वर्ड आएगा L+I,
ये वर्ड आया एल्काइल, तो ये हमारे पास एल्काइल बनेगा। और मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो आपके पास मिथाइल बन जाएगा। जैसे देखें CH3, ये वैलेंसी ओपन है, मिथाइल बन जाएगा। अगर आप इथेन लेते हैं और इथेन में से एक कम करते हैं हाइड्रोजन, मीन्स एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वैलेंसी ओपन होगी CH3 CH2, इस तरह से इसको इथाइल बोलेंगे, इसको मिथाइल कहेंगे। तो ये आपने IUPAC नेम वाले क्लास के अंदर वीडियो लेक्चर में देख लिया होगा। बाकी एक बार और मैं आपको लाइव क्लास के थ्रू और बताऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना सा देखिएगा कि यहाँ फ्री रेडिकल इसमें एल्काइल होंगे और आइसोमेरिज्म, और ये टॉपिक 12th क्लास में है, लेकिन अभी हम एल्केन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको जो भी एल्केन आइसोमेरिज्म शो करेगा उसका पूरा का पूरा डिटेल मैं बता देता हूँ। आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म। व्हाट डू मीन वर्ड आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म मीन्स टू और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफर इन, मे बी पॉसिबिलिटी फंक्शनल ग्रुप सेम बट डिफर इन। अब वो किस किस में अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है? डिफर इन सब्स्टिट्यूट ग्रुप, Hg, जो भी मिथाइल है, इथाइल है, क्लोरो है या क्लोराइड है, किसी न किसी सब्स्टिट्यूट ग्रुप में डिफर हो सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी मल्टीपल बॉन्ड में डिफर हो, मे बी पॉसिबिलिटी फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, वो कहलाता है आइसोमर। और आइसोमर्स की जो फिनोमेनन है इसको हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। इट मीन्स टू और मोर कंपाउंड which have same molecular formula but differ in maybe possibility in substitute group, multiple bond and functional group, or maybe possibility 3 dimension geometry, or maybe possibility rotation by the single bond. Okay, in conformational isomerism. In this case, alkane only substitute group are differ. मल्टीपल बॉन्ड इसमें होगा नहीं, एल्काइन और एल्कीन में होगा। और फंक्शनल ग्रुप ये हमारे अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, इसमें आएंगे। तो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन इस एल्केन के लिए सिर्फ इतनी सी होगी, टू और मोर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ओके, देयर आर 3 मेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये बहुत इजी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बहुत आराम से देखिएगा इजीली, बाकी कल लाइव क्लास से और दोबारा से बता देंगे आपको। चेन आइसोमेरिज्म, चेन का मतलब हो गया कि एक जो लीनियर चेन है उसमें डिफरेंस होना। और एल्केन में अगर बात करें फर्स्ट मेंबर की CH4 की, तो ये आपको चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा ये। अगर हम बात करें इथेन की, ये भी नहीं बना सकता क्योंकि 2 ही कार्बन है, चेन को कैसे बनाए, बन ही नहीं सकती। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोपेन की, तो प्रोपेन में भी कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। इसका मतलब 4th कार्बन से शुरू होगा। इट मीन्स 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन का एल्केन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 कार्बन का एल्केन, तो ये आपके पास में बनता है ब्यूटेन। IUPAC नेम इसका हो जाएगा ब्यूटेन। ये तो हो गया IUPAC नेम। अगर बात करें कॉमन नेम, तो N ब्यूटेन इसका नाम होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका फॉर्मूला जो है वो बनता है C4H10। हाउ मेनी कार्बन? 4। 1 2 3 4 4 3 + 2 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा C4H10। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी चेन फॉर्म में बना करके। देखिएगा जरा,
इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, इसमें भी C4H10 हो रहा है, देख लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 C4H10 सेम है, बट डिफरिंग चेन में डिफरेंस आ रहा है। देखिएगा जरा, ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। इसका मीनिंग हुआ कि इसका अगर हम IUPAC नेम दे तो इसका IUPAC नेम आपको सिखाएंगे सभी और आपको आते भी ऑलरेडी। तो 1 2 3, फर्स्ट वन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी चेन बना दी 1 2 3 कार्बन की। अब इनके अगल बगल में चाउम्याओ क्या है, और ये चाउम्याओ में ये वाला हमारे पास में आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे। तो IUPAC में हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम बना, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। और पोजिशनल आइसोमेरिज्म हम बात करेंगे तो 6 कार्बन से शुरू होता है। कौन से कार्बन से, 6, मतलब इसमें पोजीशन को चेंज किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और एग्जांपल में 6 कार्बन का आप कोई भी एल्केन बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। और सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, ये नंबर 1 कर लेते हैं। 5 कार्बन है, होने चाहिए 6। तो एक में मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। ओके, तो जैसे ही आपने CH3 ऐड किया तो 2 नंबर पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ गया। बहुत अच्छे से सुनना, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल सुनना है और क्वेश्चंस के आंसर टिक करने हैं। हमारे कोर्स में थ्योरेटिकल नहीं आता, सारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको बताना है कि कौन सा पोजिशनल आइसोमर है या नहीं। तो देखिएगा, इसका अगर हम IUPAC नेम दें तो 1 2 3 4 5, सेकेंड नंबर पे आ रहा है आपके पास में मिथाइल ग्रुप। ओके, ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अब इसका नाम बन गया 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। देयर आर 5 कार्बन, 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, नाउ सेकेंडरी आइसोमर अगर हम बनाए तो इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। देखना, पोजिशनल आइसोमर मतलब पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो इसको मैं ये 1 2 3 4 5 बना दिया। अब मैं इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देता हूं 1 2 3 थर्ड कार्बन यहां पर आ गया। तो ये इसका पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। याद रखिएगा, चेन आइसोमर जब भी होंगे, CI जब होंगे, उसमें रूट वर्ड चेंज होता है। रूट वर्ड कैसे, थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ये तो ब्यूटेन था और ये इसका आइसोब्यूटेन नाम बना था, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन वर्ड आया था। याद रखना, इसमें रूट वर्ड आएगा प्रोप, इसमें रूट वर्ड आ रहा है ब्यूट। तो रूट वर्ड चेंज अगर हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ CI है। और अगर रूट वर्ड सेम हो, देखना जरा, पेंट दोनों साइड में, इसमें केवल पोजीशन चेंज हो रही है। 2 मिथाइल, यहां पोजीशन चेंज हो रही है, देखिए 3 मिथाइल आ गया। इसका मीनिंग हुआ ये पोजिशनल आइसोमर है, ये चेन आइसोमर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कोई यूज नहीं है इसका, यूजलेस है, लेकिन बताएंगे आपको कि ये एल्कीन के साथ में यह रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म से ज्यादा मोर करेक्ट ऑप्शन इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म का जाता है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। जैसे हमने कहा C3H6, ध्यान से देखना। अब देखने में तो ये यूं लगता है कि हमारे पास ये एल्कीन है, जी हाँ, लेकिन आप खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये है आपके पास में प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। आप कहेंगे आपने ऐसे क्यों लिखा, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये प्रोपीन है। ओके, अब मैं इसका दूसरा आइसोमर बनाऊं तो मैं इसको क्लोज चेन में बना सकता हूं। देखना जरा, CH2 CH2, यहां पर जैसी क्लोज चेन बनी तो ये बन गया साइक्लोप्रोप प्लस N। विषय में केयरफुली, साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पर ये एल्केन है, तो एल्केन के साथ में यहां पर एल्कीन जो है वो रिंग चेन, तो रिंग मतलब एक क्लोज रिंग बन गई यहाँ पर, चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब यहाँ एक चेन थी, यहाँ एक रिंग बन गई, इसलिए नाम दे दिया इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये आपके 12th क्लास में आएगा। अभी हम जैसे 12th शुरू करेंगे तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म टॉपिक ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जीओसी कंप्लीट होगी तो हम सबसे पहले आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आपके 3 मार्क्स का है, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, it means 2 or more compound in which free rotation are present with respect single bond। मतलब सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी रोटेशन होता है उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलेंगे। और कन्फर्मेशनल का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड शुड बी कंटिन्यूअस, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस होने चाहिए। गौर से देखिएगा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस हो गए, इसलिए ये शो कर सकता है यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आओ कैसे देखिएगा, अगर मैं इस वाले कार्बन को, वैसे डिटेल बाद में आएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन, शॉर्ट्स प्रोजेक्शन, अभी से कितना समझो, इसको हम अगर डॉट बना दें और इस वाले कार्बन को अगर हम सर्कल बना दें तो देखो इस कार्बन को मैंने बनाया डॉट, 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, और तीनों को मैंने इस तरह से इससे कनेक्ट कर दिया, बन गया ऐसा। अब ये वाला कार्बन जो है सेकंड वाला, ये फर्स्ट कार्बन समझ लीजिएगा, ये सेकंड कार्बन, इसको मैंने सर्कल बना दिया, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर इसको डॉट से बना दिया, ये 1 2 ये 3। अब ये इस तरह से है, ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3, और ये मैंने बना दिया डॉट। यहाँ पर 1 2 3 ये मैंने बना दिया यहाँ पर। ओके, इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड है, पेन को मान लीजिए सिंगल बॉन्ड, इस तरह से है, इस तरह से। इस वाले हाइड्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल ओवरलैप है। अब आप इसको रोटेट करें तो यहाँ पर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू फ्री रोटेशन, मतलब इनमें कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर एक आपके पास में सिंगल बॉन्ड है, इसमें आप जो रोटेट कर सकते हो। कहने का मीन हुआ कि एक ये प्लेट है आपके पास, एक दूसरा प्लेट है, अगर आप इसमें यहाँ पर स्क्रू ड्रिल करके लगा दें इसमें ये स्क्रू, तो अब भी इसमें रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, आप ऐसे प्लेट को लगा देते हैं, ये स्क्रू लगा दिया, तो आप ऐसे तो रोटेट कर ही सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कीन ले लेंगे तो यहाँ 2 स्क्रू बन जाएंगे, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा वाला हमारे पास में ये स्क्रू। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो अब ये रोटेट नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि एल्कीन जो है वो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, लेकिन एल्केन शो नहीं करता। यहाँ हम जीआई की बात कर रहे थे, जीआई की, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे को इतना सा ध्यान देना है कि यहाँ पर हम फ्री रोटेशन कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो एल्कीन तो कन्फर्मेशनल शो नहीं करेगा, लेकिन जीआई शो करेगा। एल्केन जो है वो आपके पास में यहाँ पर कन्फर्मेशनल शो करेगा, लेकिन जीआई शो नहीं करेगा, तो दोनों में अंतर है।
वहां पर फ्री रोटेशन हो रहा था, ज्योमेट्री में चेंजेस हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास फ्री रोटेशन पर पाबंदी नहीं है, इसलिए ये फ्री रोटेट हो जाएगा। तो इसको आप घुमा सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट आइसोमर है। और दूसरा आइसोमर इसमें बनाने के लिए ये डॉट वाला, इसको तो फिक्स रख लो, बाहर वाले को घुमा दो, तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आइसोमर और ये सेकंड आइसोमर, इस तरह से इसमें दो आइसोमर बनते हैं। आप देखिए कितना डिग्री पर रोटेट किया, ये टोटल 120 है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री है। इसका मीनिंग हुआ कि थीटा की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री रखें तो आपके पास में ये आइसोमर सेकंड वाला बन जाएगा। इसमें सेम ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए इसको एक्लिप्स बोलते हैं। इसमें एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसको स्टेगर्ड कहते हैं। याद रखना, ये वाला स्टेगर्ड है, ये एक्लिप्स है। तो 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में जो बनते हैं उनको आप गाउस या स्क्यू बोलते हो। डिटेल बाद में आएगा, अभी से कितना सा सुनो, स्क्यू या गाउस। स्पेलिंग गाउस की GAUCHE, ओके। गाउस फॉर्म बनेगी या स्क्यू फॉर्म बनेगी उनके बीच में। अब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा एक नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए ये ब्यूटेन, कौन सा ग्रुप है? ब्यूटेन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड को आपने मान लिया डॉट, थर्ड को आपने मान लिया सर्कल। तो देखिए यहाँ भी CH3 होगा और यहाँ भी CH3 होगा। जैसे आप रोटेट करेंगे ये वाला CH3 यहीं का यही रहेगा, लेकिन यहाँ ये CH3 आ जाएगा। अब ये वाला जो है वो पार्शियल स्टेगर्ड है। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, डिफर ग्रुप अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड आएगा पार्शियल स्टेगर्ड। फिर जैसे ही वापस से आप रोटेट करेंगे तो ये CH3 देखना, ये CH3 यहीं का यहीं रहेगा। सर्कल वाला जो CH3 है यहाँ वाला, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गया और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। तो देखो CH3 यहाँ पर है, एक यहाँ है, 120 डिग्री पर है। तो आपने 60 डिग्री यहाँ रोटेट कर दिया, अगेन 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो टोटल 120 हो गया। फिर अगेन अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करता हूँ फिर से, थीटा की वैल्यू फिर से कितनी हुई? 60। तो इस वाले केस में आपके पास CH3 हाइड्रोजन ये सर्कल वाला है, तो इसका CH3 जस्ट अपोजिट साइड में आता है। गौर से देखो, CH3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर ये वाला आएगा कंप्लीट स्टेगर्ड, ये वाला बनेगा कंप्लीट स्टेगर्ड। और नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूटेन में कितना डिग्री रोटेट करें कि एक्लिप्स फॉर्म से स्टेगर्ड आइसोमर बन जाता है। तो बनाने के लिए थीटा 60 डिग्री ये रोटेट हुआ, 60 ये और 60 ये, तो एक दूसरे के अपोजिट लाने के लिए 180 डिग्री आपको रोटेट करना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन है। अगर इथेन की बात करें तो आपके पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही आपका आंसर जाएगा, लेकिन अगर ब्यूटेन की बात करें तो आपका आंसर जाएगा 180 डिग्री। ओके, और इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी के साथ में भी इसका ग्राफ बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी। और इसका डिस्कशन हमारे 12th क्लास में है टॉपिक, उसके बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको डिस्कशन में